Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी +2 सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु +3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा अपलोड करी जदि भल लगिला ताहले लाइक करदेव और सब्सक्राइब करदेव जो वीडियोज गुड़ा मु अपलोड करी तार नोटिफिकेशन पाई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट करदेव गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियोज ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुच तार क्वालिटी एठी देख बाय डिफॉल्ट 360 अच्छी तुम ताकू बढ़े मध्य करिवो एठी एडवांस रे क्लिक करी तुम रिजोल्यूशन बढ़े पारिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देवी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रू तुम क्लिक करी डाउनलोड मध्य करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तुम एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तुम सर्च करि परिबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक रे हमें मैग्नेटिक इंडक्शन बी एवं लॉरेंज फोर्स विषय रे पढ़िबा। देख ऑलरेडी एटा तुम +2 रे भी पढ़ीच सेम जिनस। सो एक्सपेरिमेंटली देखागला जे तुमर जो मेकानिकल फोर्स रो ट्रांसमिशन होची फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, a physical contact between them is necessary. Now there are also cases where a body exerts a force on the other without any contact between them. Example कौन ना तुमरो gravitational force or your electrostatic force है। So this is termed as the interaction at a distance, okay, without any physical contact. So to explain this interaction we take the concept of field. प्रत्येक बॉडी रो जो फोर्स आछि से फोर्स रो गोटे फील्ड रोहुची हला तार चारि पार्श्व रे। नाउ प्रेजेंस ऑफ ए बॉडी at any place modifies the space around it, and this modified space is nothing but your field. Okay, so when two bodies are placed near to each other, then they both will have a field of their own. So these fields interact with each other in order to give rise to a force. Okay, so this is the reason why two charged bodies exert a force on each other, and also two bodies in universe attract each other due to the gravitational force. अच्छा, electrostatic force को आमे जदि देखिबा, it arises due to the interaction of your electric field, while एबे जदि magnetic case को आसीबा, magnetic force arises due to interaction of two magnetic fields. So if we replace a magnetic pole in a electric field, or उल्टा करिबा electric charge in a near a magnet, then no force is experienced by either of them. Okay, so let us see now a simple experiment carried out by Oysters. बहुत popular experiment eta in order to have the magnetic effect of current. In 1820 Oyster was able to show that electric current flowing through a wire produces magnetic field around it. एटा just for the sake of simplicity एटा खाली बुझी थाओ हैला जे magnetic field केमती क्रिएट होउची। देखो एटी फिगर रे गोटे वायर को कंसीडर करिबा, a wire AB like this is the wire. Okay, now it is connected to a battery in such a way that electric current flows from A to B. A direction रे flow कला electric current on closing the key. This is the key. Okay, so now place a compass needle, गोटे सूची चुंबक हैला, just below the wire, this one. Okay, just below the wire we have placed a compass needle. So एबे कौन हबो, when you close the key, then obviously current will start flowing through the wire. Now it is observed that the compass needle gets deflected. So compass needle actually रे कौन, it itself is a magnet. So what a magnet deflect केते बेले हबो, it can only be affected by a magnetic field. So एई एक्सपेरिमेंट रू इंडिकेशन मिलिला जे गोटे magnetic field develop होची around the wire when an electric current flows through it, and this phenomenon is known as the magnetic effects of your current. आकु एबे देखिबा, what are the rules for the direction of deflection.
suppose we consider the n pole माने north pole है so ये दुईटा तुम मेन रूल अच्छी वन इज योर स्नो रूल है इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड द वायर इज प्लेस्ड ओवर द निडल जोटा कि आम प्रीवियस फिगर रे देखिला जो थे कि वायर तले निडलटा थिला है देन द नॉर्थ पोल ऑफ द निडल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट ओके देख मुणी से फिगर को वापस आस यही फिगर रे तुम देखिपो वायरटा ठीक निडल ऊपर अच्छी आईटा है तुम नॉर्थ पोल है ओरिजिनाली यही पोजिशन रे थिला है अच्छा एठी तुम वेस्ट डायरेक्शन टा कौ पटे हम जदि मुझे भाया एरो देली सो यही पटे तुम ईस्ट आसीगला आउ यही पटे वेस्ट आसीगला सो जदि तुम तारटा सूची चुंबक ऊपर अच्छी ताले नॉर्थ पोलटा टुवर्ड्स वेस्ट डिफ्लेक्ट हम ओके आ जदि उल्टा था है जदि एबे ठीक उल्टा आम कंसीडर करिबा दैट इफ द वायर इज प्लेस्ड बिलो द निडल okay the second case and the current flows from south to north then what will happen the north pole will be deflected towards east very simple second law गोटे अच्छी रूल एटा हला तुमरो एम्पियर्स रूल है एम्पियर्स रूल देख एठी तुम देखि परथबो इमेजिन अ मैन हु इज स्विमिंग अलोंग द वायर है एटा हला तुमरो सपोज वायर करेंटा ए डायरेक्शन रे होला सो तार पादरू यही लोकर पादरू मुंड पर्यंत करेंटा जाउची है पादरू मुंड पर्यंत सो द डायरेक्शन ऑफ करंट विथ हिज फेस टुवर्ड्स द निडल सो दैट द करंट एंटर्स एट हिज फीट जमती कहली एंड लीव्स हिज हेड सो द नॉर्थ पोल ऑफ द निडल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड माने यही लेफ्ट हैंड आड़ को नॉर्थ पोलटा डिफ्लेक्ट करिवो सो जो हिसाब रे भी तुम रूल अप्लाई कर यही तुम डायरेक्शन तुम इजिली पाइपर नाउ लेट अस कम टू द लॉरेंज फोर्स देख लॉरेंज फोर्स कहले व्हेनेवर ए चार्ज पार्टिकल passes through a region having both electric field and magnetic field acting simultaneously then the particle will feel two following forces first one the force due to electric field है सो देख इट इज ए वेलोसिटी इंडिपेंडेंट फोर्स है वेलोसिटी उपर यार किसी भी डिपेंडेंसी नहीं एंड इट एक्ट्स व्हेन द चार्ज इट एट रेस्ट ओके सो यार वैल्यू केते एफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ योर चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सो चार्ज जोटा क्यू एटा होची स्केलर क्वांटिटी सो इट एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ योर फील्ड okay so this is the force due to the electric field second one is the force due to the magnetic field ये depend करे किंतु velocity ऊपर है यार वैल्यू है f magnetic equal to product of the charge and the cross product of your velocity and the magnetic field है so ये जो cross product रा में rule जानिछु डायरेक्शन टा को पटे हबो perpendicular to both v and b है एबे एई दुईटा फोर्स रा में जदी वेक्टर सम करिबा then we are getting the Lorentz force given by F equal to F electric plus F magnetic so that QE plus Q into V cross B which is the Lorentz force. So आमे suppose magnetic force को जदि खास करी देखिबा देखो तार वैल्यू आसला F magnetic equal to Q into V cross B so magnitude जदि बाहर कर देले हमरो एई बळे आसीबो QVB sin theta theta is the angle between V and B so V रो वैल्यू जतले 0 हो जाउची फोर्स 0 हो जाउची सो आमे देखिला जे फोर्स किछि भी एक्सपीरियंस करिवो नाही इफ द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट जदि वेलोसिटी तार नाही मूवमेंट नाही ताले किछि भी मैग्नेटिक फोर्स नाही अच्छा जदि थीटा एंगल जो यार वैल्यू 0 किंबा 180 हेले तो भी तमरो फोर्सटा 0 हो जाउची ता माने वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड भितरे एंगलटा जदि 0 डिग्री माने समान डायरेक्शन रे किंबा 180 डिग्री माने ऑपोजिट डायरेक्शन रे एंटी पैरेलल हे गले ताले फोर्सटा मध्य 0 हे जाउची मैक्सिमम केते बेले हबो जतले थीटा रो वैल्यू 90 डिग्री हबो देन दिस फोर्स विल बी मैक्सिमम वेरी सिंपल नाउ लेट अस सी व्हाट विल बी द डायरेक्शन जेमती कहली क्रॉस प्रोडक्ट जेहेतु आछि सो इन जनरल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय द इक्वेशन एंड इट इज इन अकॉर्डेंस विथ द क्रॉस प्रोडक्ट
है। सो व्हेन द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल and the direction of lines of force are at right angle to each other, then direction of force can also be determined by a simple rule which is the Fleming's left hand rule. एटा क्रॉस प्रोडक्ट रूल हिसाब रे भी तुम बहुत भलसे जानिच कौन ये रूलटा देख तुम जदि एटी फिगर रे भी देखि परथबो लेफ्ट हैंड रो फिंगर्स को यही भाया स्ट्रेच करिवो जे फर्स्ट फिंगर सेंट्रल फिंगर आउ थंब ये सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहिबे देन फर्स्ट फिंगर तुम पॉइंट करिवो फील्ड को सेंट्रल फिंगर पॉइंट करिवो करंट को आउ लास्ट रे तुम थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स केमती मन रखिबो फर्स्ट F and this is the field F, then your central C and this is current C. So easy to remember and the thumb will indicate the direction of your force. देखो ये बढ़िया तुमरो स्ट्रेचिंग करि परिबो लेफ्ट हैंड थंब रूल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल हैला. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ B. एटा भी बड़े बड़े क्वेश्चन আছে शॉर्ट क्वेश्चन. सो CGS यूनिट रे आमे याकू जदी यही फोर्स रो आम इजिली बाहर कर बी को गोटे साइड नहीं जाओ. सो एफ बाय क्यू भी साइन थीटा हो गला. क्यू रो वैल्यू आम जानिछु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट रे आसीबो हैला. भी आउ थीटा रो वैल्यू थीटा दे देला हमें सपोज 90 डिग्री ताले दिस फोर्स इज सिंपली डाइन इन केस ऑफ सीजीएस. सो बी रो वैल्यू आसी गला 1 गॉस हैला 1 गॉस. देयरफॉर आमे कहि परिबा जे मैग्नेटिक फील्ड इज सेट टू बी 1 गॉस if the charge is of 1 EMU moving at right angle to it and the velocity is 1 centimeter per second and experiencing a force of 1 dyne. So 1 gauss equal to 1 dyne per 1 EMU of charge into 1 centimeter per second. Similarly SI unit रे यारो यूनिट हो जाए तुमरो टेस्ला है. एक्जाक्टली सेम वे रे आमे ये भाया भी लिखि परिबा. सो दैट लास्ट को आसीबो केते 1 टेस्ला इक्वल टू 1 न्यूटन पर 1 कूलम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड है. नाउ लेट अस सी द डायमेंशन ऑफ बी. ए सेम रिलेशन रो बी इक्वल टू एफ बाय क्यू भी कर दियो है. ऑलरेडी तुम एफ क्यू और भी रो डायमेंशन जानिच. सो यू कैन इजीली गेट द फॉर्मूला. आसीगला केते m1 l0 t - 2 a - 1 ए होची एठी एम्पियर है. सो डायमेंशन है 1 0 - 2 - 1 है. नाउ रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस एटा टिके पड़ी पारे परीक्षा रे है. व्हाट इज द रिलेशन देख सिंपली सबू टेस्ला को आग लिखिदेल तापर करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी को तुम इन टर्म्स ऑफ सीजीएस यूनिट कन्वर्ट करदेल. ओके चार्ज को फोर्स को आउ वेलोसिटी को. सो यू आर गेटिंग नाउ द क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ योर गॉस. सो लास्ट को आसिला 1 टेस्ला इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस. ओके आकु बढ़िबा. नाउ हाउ यू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड डायग्रामेटिकली. देखो since the force acting on a moving charge particle is perpendicular to the plane containing V and B because V cross B होची तेणु करी force टा तमरो perpendicular to both V and B हबो. So it is not possible to represent all of them in a plane of paper. हमको कहीं ना तमरो 3D structure दरकार हैला. So generally हम कौन करा जाए we represent B in a direction perpendicular to the plane of paper. So एटा दुईटा हिसाब रे तमरो हेई पारे हैला. फर्स्ट है फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर बट डायरेक्टेड आउटवर्ड्स माने यही तुम जो स्क्रीन देखुच स्क्रीन रु तुम मुह आड़ को है डायरेक्टेड आउटवर्ड्स टुवर्ड्स द रीडर है. देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय हियर डॉट्स. ओके जदि स्क्रीन रु तुम मुह आड़ को फोर्स रो डायरेक्शन अच्छी देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय योर डॉट्स. आ जदि उल्टा है तुम मुहरु स्क्रीन आड़ को माने इनवर्ड जदि आसची तुम फील्डटा देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्रॉस. ओके वेरी इजी. डॉट है तुम आउटवर्ड आ क्रॉस है तुम इनवर्ड. ओके सो सम ऑफ द थिंग्स दैट एटा तुम निजर टेस्ट पाई है एटा मु तुमको टास्क देली. लेट अस गो फर्दर. किछरा इंपोर्टेंट नोट्स लाइक योर फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या ऊपर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट देखो मास ऊपर इंडिपेंडेंट चार्ज ऊपर डिपेंडेंट वेलोसिटी ऊपर डिपेंडेंट आउ डायरेक्शन ऊपर डिपेंडेंट. सेकेंड पॉइंट रे जदि गोटे चार्ज पार्टिकल मूव करुच्ची अलोंग और अपोजिट टू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ताले फोर्स आमर जो एक्सपीरियंस करिवो ये है 0 नो फोर्स एक्सपीरियंस करिवो है. थर्ड पॉइंट रे द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज मैक्सिमम व्हेन इट मूव्स एट राइट एंगल माने थीटा रो वैल्यू जेतोले 90 डिग्री हो जाउची. लास्ट पॉइंट
the force is always perpendicular to V and B because V cross B होउची है so simultaneously या दुईटा संगरे ये perpendicular रहिबो therefore the force is not capable of increasing the kinetic energy of the particle. Last रे देखि दबा what will be the work done by the Lorentz force. देखो Lorentz force रो already हमें संज्ञा पाई जाइछु F equal to Q into E plus V cross B. Now it can be proved that the rate at which work is done on or by the particle will be same as if only electric field were present and magnetic field gives no contribution to the work on or by the particle. Magnetic field द्वारा किसी भी कार्य करा जाई पारे नाही हला. So let the particle be displaced through a distance, suppose a very small distance dl, okay, very small distance dl in a small interval of time dt. ताले dl हिगला v into dt. Then work done dw, a very small work done in this time interval, ये हला तमरो dot product of force and distance. So f dot dl, f रो वैल्यू dl रो वैल्यू आमे पुट कर देला आ याकू एबे आमे कोन करबा डेरिवेटिव नहीं जावा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. सो dw by dt बाहरी गला ओके और सिंपली ए dt को आर साइड को नहीं गला. सो dw by dt रो वैल्यू एति आसी गला. नाउ सिंस द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द क्रॉस प्रोडक्ट v क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू v, सो देखो ए टर्मटा जेमती कहली मैग्नेटिक तुमर जो फोर्स द्वारा किसी भी कार्य होनी एइथिपाई v क्रॉस b डॉट b यार वैल्यू आसी जाए एज पर द वेक्टर एनालिसिस यार वैल्यू 0 आसी जाए. तेणु करी dw by dt रो वैल्यू है q into e dot v. ओके सो q आउ e रो प्रोडक्ट आमे जानिछु इट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स. सो लास्ट को रिजल्ट आसिला द इलेक्ट्रिक फोर्स आउ वेलोसिटी रो डॉट प्रोडक्ट. ओके सो दिस shows that the rate of doing work on or by the particle is only due to the electric force acting on it. Okay, thank you.